Okay, then let's start today's session. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so last time we have seen the many rules of inference and कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं. थोड़े और एग्जांपल वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स की हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है. Okay, so let us see these two examples. First says if Tom is not on team A, then Hua is on team B, and if Hua is not on team B, then Tom is on team A. Okay, these are two statements called as premises. And lastly, what is the conclusion? Tom is not on team A or Hua is not on team B. This is called as conclusion. So what we have to do? We have to check whether this argument is correct or not. Okay. So कैसे करेंगे इसको? What is asked? We have to use truth table to test the arguments for validity, indicate which columns represent premises, which represents the conclusion, and include a few words of explanation showing that you understand the meaning of validity. So let me know how I code this particular thing. How I will code? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो. Convert this into symbolic form. क्या लिखूंगा मैं? Give me the statement. What can be I write here? Yes, फटाफट बोलो. Tom is on team A. P will be the statement. Tom is on team A. So I will write Tom is on. Is this visible? Whatever I am writing. What is the P will be the Not statement? clearly. Not clearly, no? Write in black. Write in picture. P will be the statement. Tom is on team A. Tom is on team A, and Q will be the statement that Hua is on team B. Let Q be the statement Hua is on team B. Then tell me what is the premises will become. First premises क्या होगा? Negation of P. P implies Q. negation of P implies Q. That is your P first implies statement. Q. What is the second statement? Negation of Q implies P. Q implies P. और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? Therefore conclusion क्या होगा? Negation of P और negation of Q. Okay, let us check this statement. क्या बोला अपने को? ट्रूथ टेबल बनाना है. So let us write P Q negation P negation Q और क्या है?
क्या लिखूं मैं यहाँ पे? नेगेशन P और नेगेशन Q. नहीं, पहले तो मुझे हाइपोथेसिस लिखना है. पहला हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस हियर? Negation P implies. Negation of P implies Q. What is Q. the second hypothesis? Negation of Q implies P. और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? This is your conclusion. So this is your premises. First premises, and this is last column is your, this premises, both are the premises, and last column is your conclusion. Last column is conclusion. Now let me know what are the truth values. Yes, what are the truth values? P का truth value क्या रहेगा? True, true. False, false. True, false. True, false. True, false. True, false. What is negation P? False. FFTT. False. True, true. What about negation Q? FTFT. FT, FT. What is negation of P implies Q? कब negation of P true है और negation of Q false है? ये कब होगा? लास्ट कॉलम में. लास्ट कॉलम में ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ रहा है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q में. सो लास्ट कॉलम में सिर्फ फॉल्स होगा, बाकी सब जगह इसका वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा. ट्रू, ट्रू, ट्रू. व्हाट इज निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P? निगेशन ऑफ Q कब ट्रू है और P कब फॉल्स है? दोनों देखो, कॉलम को कंपेयर करके बताओ मुझे. तीसरे पे ट्रू है, बाकी निगेशन Q ट्रू होना चाहिए, P फॉल्स होना चाहिए. तीसरे पे फॉल्स है, तीसरे पे फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है. नहीं, निगेशन ऑफ Q ट्रू होना चाहिए. देखो ना, यहाँ पे ट्रू है निगेशन Q एंड P फॉल्स है. निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P. सो यहाँ पे इसका वैल्यू फॉल्स रहेगा और बाकी सब जगह इसका वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा. ओके, नाउ प्रीमाइसेस का कॉलम कंप्लीट हो गया. आइडेंटिफाई द रोज विच हैज बोथ द प्रीमाइसेस ट्रू. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. चेक आउट द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होगा? निगेशन P और निगेशन Q क्या होगा? फॉल्स और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स और ट्रू, इट इज ट्रू. ट्रू और फॉल्स इज ट्रू. सो क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे? व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ बाय दिस पर्टिकुलर टेबल? High premises are true, but high conclusion is false. What do you conclusion will say? The given form is not valid. The given argument form valid कब होता है? जब सब true आता है. तो given Not valid. Invalid. is invalid. Given form is invalid. So ऐसे करना है आपको. सेकेंड भी करते हैं. What is second? Tell me what is P, what is Q, what is R. I will need 3 statements. Let P be the statement. Oleg is math major. Oleg is math major. What is second? Q statement क्या होगा इसमें?
Olig is economics major. Olig is economics major. And R statement क्या होगा? What is extra information is given in the second statement? Olig is required to take maths 362. जैसे आपका मैथ्स का कोड है USIT 304 और सब, वैसे उनका कोड है मैथ्स 362. So Olig is required to take math 362. Olig is required to take math 362. Then tell me what are the statement forms in this. What is the first statement here? First statement क्या होगा, second statement क्या होगा, and third statement क्या होगा? What is the first statement? Anyone? P implies R. यहाँ पे देखो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, और है बीच में. ओलिग इज मैथ्स मेजर और ओलिग इज इकोनॉमिक्स मेजर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? P negation R. P negation Q. P Q. E or Q. What is the second statement? P implies R. Second statement says P implies R. और what is the conclusion statement? That is therefore statement. Conclusion statement क्या है? Q और negation R. Q और negation R. अभी इसका स्टेटमेंट का ये देखो कैसे करोगे इसको. अभी अगेन बाय द सेम रूल. यहाँ पे रूल ऑफ इन्फरेंस नहीं लागू होगा. सो अगेन सेम रूल से करो. What we want P, we want statement Q, we want statement R, we want negation of statement R. फिर अभी हाइपोथेसिस कर सकते हैं हम लोग. We can take P or Q, we can take P implies R, and we can take Q or negation of R. So what is the hypothesis over here और premises क्या होंगे? ये दो स्टेटमेंट जो है वो क्या है? Premises है. और लास्ट स्टेटमेंट क्या है? Conclusion. Last statement is conclusion. Okay. So let us move forward. What is P का वैल्यू क्या रहेगा? फटाफट. True, 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 true. False, 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 false. What is Q value? True, true, false, false. Again, true, true, false, false. What is R value? True, false, true, false. आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो, या सिर्फ लेक्चर हो गया खत्म? जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगा. लिख के ले लो मेरे से. फॉल्स, ट्रू, सिंपल सिंपल चीजें में आप मिस्टेक करते रहोगे फिर. फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू. What is P or Q? Now you are going to tell me what is the hypothesis, what are the conclusion, and I will want first to determine what are the critical rules. Yes, tell me. क्या आएगा यहाँ पे? Anyone? ट्रू. एक का नहीं, मुझे पूरा कॉलम चाहिए.
नेक्स्ट सेकंड भी ट्रू सर, ट्रू हाँ, थर्ड, ट्रू फोर्थ, ट्रू फिफ्थ कॉलम, ट्रू सिक्स्थ इज, ट्रू सेवेंथ, फॉल्स फॉल्स, दोनों भी फॉल्स होंगे। क्यों फॉल्स होंगे? क्योंकि दोनों उसके जो बोथ आर सेम स्टेटमेंट फॉल्स। both are false, then it is false. What is P Yes, sir. implies are? True implies true क्या होता है? True implies true is true. What is true implies false? False. True implies false is false. Then true implies true is true. Next is true implies false is false. Then false, अगर hypothesis is false है तो result true आने वाला है। सो हमेशा याद रखो, कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आता है। मतलब P अगर फॉल्स है तो P इम्प्लाइज आर ट्रू ही आएगा, वो आर कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आप ये दोनों के साथ अभी हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रीमाइसेस में क्रिटिकल रोज कौन सा है? आप मुझे बताओ कौन सा क्रिटिकल रोज है जहाँ पे दोनों प्रीमाइसेस जो है ट्रू होने चाहिए। जितने भी आपके पास प्रीमाइसेस है सब ट्रू होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से रो है? एनीवन? क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट रो इज क्रिटिकल रो? फर्स्ट रो is critical row, second row not critical row, third row is critical row, then ये वाला रो और ये वाला रो। Is this cover all the possibility when both the hypotheses are true? क्या सब पॉसिबिलिटी कवर कर रहा है? Now tell me what is the conclusion in this case? यहाँ पे Q का वैल्यू ट्रू है, R का वैल्यू फॉल्स है, निगेशन R का वैल्यू फॉल्स है। क्या आएगा इसका कंक्लूजन? ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। यहाँ पे क्या है? फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। False. यहाँ पे क्या है? ये वाले रो में ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, और लास्ट रो में ट्रू और ट्रू इज ट्रू। सो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है आपको? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। सो आई कैन राइट द आर्ग्यूमेंट is not valid. Argument is not valid. Okay, argument is not valid. So ये कंप्लीट हो गया। सब वैलिड आर्ग्यूमेंट आता है जब आपको क्रिटिकल रूल्स में सब ट्रू वैल्यूज मिलती है। कंक्लूजन का सब वैल्यू क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ओके, अभी हम लोग इसमें थोड़ा स्मार्टनेस करेंगे। अगर मॉडस पोनेन, मॉडस टोलेन कुछ यूज होता है तो वो करेंगे। व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट वन? यस, फर्स्ट वन क्या फॉर्म है इसका? डायरेक्टली बोलो, इतना सोचने की जरूरत नहीं। P implies Q. P implies Q. Let us write what directly उसने बोल दिया P implies Q, क्योंकि फर्स्ट P में क्या ले सकता हूँ? जूल सॉल्व्स द प्रॉब्लम करेक्टली एंड सेकेंड जूल ऑब्टेन द आंसर Q. व्हाट इज द सेकेंड स्टेटमेंट फॉर्म? क्योंकि मेरा जो जूल ऑब्टेन आंसर करेक्टली वो क्या था? Q था, और जूल सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली वो क्या था? P था। सो डायरेक्टली उसने लिख दिया P implies Q, सेकेंड इज Q। व्हाट अबाउट देयरफॉर? क्या लिखा है? देयरफॉर P। Is this the valid argument? Is this the valid argument? Yes. No, this is not a valid argument. I will explain why. Let us complete it first. P, Q. P implies Q. So ये जो दो है, ये क्या है? हाइपोथेसिस है और प्रीमाइसेस है। Is this correct? Can I say these two are premises? What is the conclusion? Conclusion is P. Let us check now. फटाफट चेक करो P क्या है?
true, true, false, false. What is Q? True, false, true, false. What is P implies Q? P implies Q क्या है? What is P implies Q? Anyone? TFTT. TF T T. What is P then? As it is. पहले हम लोग चेक करेंगे किसमें हाइपोथेसिस का दोनों वैल्यू ट्रू है. दैट इज हियर एंड हियर. ओके, ये दो ऐसे स्टेटमेंट है जहाँ पे दोनों हाइपोथेसिस या प्रीमाइसेस ट्रू है. व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर हियर? फॉल्स. कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? ये वाला वैल्यू प्रॉब्लम दे रहा है आपका कंक्लूजन में. तो ये क्या है? दिस इज नॉट वैलिड. कब वैलिड होता है ये? व्हेन दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड. अगर इसका ऐसे फॉर्म होता P implies Q, सेकेंड स्टेटमेंट इज P and therefore Q, then it will become a valid argument. Why? कौन सा रूल से वैलिड बनता है ये? रूल का नाम है मॉडस पोनेन. रूल नेम इज मॉडस पोनेन. तब ये वैलिड आर्ग्यूमेंट बनता है. बट ये उल्टा है, पहले Q दिया है और आपको कंक्लूजन P दिया है, तो ये नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट. दिस इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. 25th करते हैं. क्या है ये? किस फॉर्म में स्टेटमेंट है? P और Q. P और Q. व्हाट इज P ओवर हियर? जैसे उसने बोला डायरेक्टली P और Q, आपको मन में आना चाहिए कि P क्या है, Q क्या है. P क्या है? दिस रियल नंबर इज रैशनल. Q क्या है? दिस रियल नंबर इज इरैशनल. व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट? Negation P. And what is the conclusion statement? P. Negation P and conclusion is Q. ये आपका पहला पार्ट जो है रैशनल वाला जो है उसको P बोलेंगे और इरैशनल वाला है उसको Q बोलेंगे. Then we have given negation of P and therefore we have given Q. Can I say this is a valid argument? This is the valid argument. What is the reason? This is of the form elimination. This is of the form rule of inference. कौन सा? elimination. So मैं इसके लिए अगर ये ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो भी मुझे वैलिड आर्गुमेंट मिलेगा. ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल हमने देख लिया है ऑलरेडी. हमने इसका ट्रूथ टेबल देख लिया है लास्ट में. दिस इज ऑफ दिस फॉर्म. वेयर इज एलिमिनेशन? P और निगेशन P, निगेशन ऑफ Q, देयरफॉर P. और B फॉर्म क्या है? P और Q, निगेशन ऑफ P, देयरफॉर Q. ठीक है. सो दिस फॉर्म के वजह से ये कोई भी जो फॉर्म आता है वो क्या है? वैलिड आर्ग्यूमेंट है आपका. इसमें से कोई भी फॉर्म आपको पहचान में आ गया तो वो क्या होगा? आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा. व्हाट अबाउट 26? क्या फॉर्म है 26 का? बताओ, फास्ट बताओ. कन्वर्ट दिस इनटू द आर्ग्यूमेंट. P implies negation Q. P implies negation Q. So what are the statements? वो लिखने की जरूरत नहीं. अगर आपको 4-5 ऐसे दिए जाएंगे आर्ग्यूमेंट तो एग्जाम में लिखते बैठोगे, पेपर कंप्लीट नहीं होगा आपका. सो डायरेक्टली विदाउट लिखे आपको मन के मन में वो करने आना चाहिए. अभी बहुत एग्जाम्पल हमने देख लिए जहाँ पे हम लोग P लिखते थे, पहले Q लिखते थे, बाद में वो सॉल्व करते थे. बट डायरेक्ट भी कर सकते हैं.
व्हाट अबाउट दिस सेकंड स्टेटमेंट क्या है? If I don't finish my homework, that means negation Q implies Negation P. I won't do well in exam tomorrow. अभी P का और एग्जाम का क्या संबंध है? P मूवीज का आपने ले लिया, ये आपने मूवीज का ले लिया, ये आपने वोंट के लिए निगेशन क्यू ले लिया. Negation R. हाँ, सो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ आर. आर क्या है? डूइंग वेल इन एग्जाम. ठीक है, तो अभी देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो आप? P implies negation Q. नहीं, P डोंट डू implies वेल. negation. P implies negation R. हाँ, तो ये कौन सा फॉर्म है? Which form it is? This is identical to this form. P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. Can I say this is equivalent to this? P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. सिर्फ निगेशन के रिप्लेस किया ओरिजिनल स्टेटमेंट. मतलब मैं निगेशन Q के बजाय Q ही लूंगा. दैट इज आई वोंट फिनिश माई होमवर्क एंड Q वो निगेशन नहीं कंसीडर करूंगा. सो कैन आई से दिस इज सम फॉर्म? कौन सा फॉर्म है ये? व्हाट इज दिस फॉर्म? दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिविटी. दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिविटी. अगर आपको बड़े मेथड से करना है, दैट इज ट्रूथ टेबल से करना है, कर सकते हो आप. टूल्स है वो आपकी लाइफ सिंपल बनाते हैं. सो अगेन आई कैन राइट दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. दिस इज वैलिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ इन्फरेंस. कौन सा रूल ऑफ इन्फरेंस यहाँ पे यूज होगा? रूल ऑफ इन्फरेंस इज ट्रांजिटिविटी. Rule of inference here is transitivity. Okay, next 27. 27 कैसे करेंगे अभी देखते हैं. If this number is larger than 2, then its square is larger than 4. क्या मैं लिखूंगा? P implies Q. P implies Q. What is the second statement? This number is not larger than 2. Negation P. Negation P. And last statement क्या है? Therefore negation Q. Is this the valid statement? क्या कोई रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? अगर ये ऐसा होता तो मैं कौन सा रूल अप्लाई करता? P implies Q, negation of Q, therefore negation of P. ये कौन सा रूल है? What is this rule is called? This rule is called modus tollens. This rule is called modus tollens. ओके, रिवाइज मैथ्स में वैसे नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं आएगा. बट यहाँ पे मॉडस टोलेन यूज नहीं होगा क्योंकि उल्टा है. निगेशन क्यों दिया है ना मॉडस टोलेन में, यहाँ पे निगेशन पी आ रहा है. तो ये उल्टा रूल होने की वजह से हम लोग को इसको एक ही तरीका है सॉल्व करने का. जब आपको रूल यूज नहीं होगा तो गो बैक टू द ओरिजिनल मेथड. गो बैक टू द ओरिजिनल मेथड. ओरिजिनल मेथड क्या है? Go back to the original method, that is method of truth table. चलो करते हैं फटाफट. What we want? We want P, we want Q, we want P implies Q, then we want negation P, and then we want negation Q. Now tell me which are the hypothesis, which are the conclusion.
या फिर बताओ प्रीमाइसेस कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा है इसमें से? These two P are implies both the statements are called premises क्योंकि वो पहले आते हैं, और लास्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंक्लूजन. सो आई विल राइट कंक्लूजन स्मॉल में. व्हाट इज पी क्यू का टेबल बनाओ. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, F F टी एफ. yes पी इम्प्लाइज क्यू क्या आएगा? T F F and other T टी एफ टी टी. ओके. व्हाट इज निगेशन ऑफ पी? F F T T टी टी. ओके, करेक्ट है. अभी आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रूट्स. क्रिटिकल रूट्स क्या है? जब दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है. कौन से क्रिटिकल third रूट्स हैं? one third and fourth थर्ड वन इज क्रिटिकल रो, फोर्थ वन इज द क्रिटिकल रो. अभी दोनों जगह पे आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है? दोनों जगह पे आपको निगेशन क्यू का वैल्यू फाइंड करना है. व्हाट इज निगेशन क्यू इन द थर्ड कॉलम? F एंड हियर T वेयर इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज आपका कंक्लूजन हमेशा क्या होना चाहिए? क्रिटिकल रो में ट्रू होना चाहिए. O ओके, कंक्लूजन अगर फॉल्स निकला तो मतलब क्या है? दिस इज नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट. दिस इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. दिस इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट 1. यहाँ पे आपका यूनिट 1 खत्म होता है. तो यूनिट 1 में दो है. पहले है सेट थ्योरी जो हमने बहुत सारा पढ़ा, फिर उसके बाद है लॉजिक. सो सेट थ्योरी, लॉजिक, ये पूरा आपको कंप्लीट यूनिट 1 है. ओके, मैंने यूनिट 1 का एक्सरसाइज आपको दिया है बट वो सिर्फ सेट थ्योरी पे दिया है. दैट इज असाइनमेंट 1 आपको जो दिया है मैंने. अगर आप टीम्स में जाओगे, टीम्स में आप असाइनमेंट्स में जाओगे तो यू विल सी असाइनमेंट गिवन. Who has turned in? उसने कुछ अटैच नहीं किया होगा, नहीं तो मुझे दिखता. He has turned in but he has not attached anything. Okay, जब टर्न इन करोगे तो मुझे यहाँ पे दिखेगा. सो आई हैव दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट. ये इमेज क्यों नहीं आया? इमेज भी दिख रहा था ना इसमें. When you open, ठीक है, कोई बात नहीं. बट आई वॉन्टेड यू ऑल टू विजिट दिस कैलेंडर अगेन एंड अगेन. कैलेंडर में आपको आपके लेक्चर्स दिखेंगे. मेरा टीचर लॉगिन है तो सिर्फ मेरे लेक्चर जब जब है तो मुझे वो दिखेंगे. बट आपका स्टूडेंट लॉगिन है तो आपको आपके पूरे क्लास के पूरे लेक्चर्स यहाँ पे दिखेंगे 10 to 12 के बीच में. अगर नहीं दिख रहे हैं, सुशांत सर को मैसेज करो आपका लॉगिन है पर नहीं दिख रहे. ओके, so that we wanted to make it clear. So I will give you one more assignment that is based on logic. ये assignment 1 based on set theory. एक और assignment दूंगा वो logic पे बेस करेगा, जो इस पूरा चैप्टर जो है 24 पेजेस में हमने कवर किया वो चैप्टर के बेसिस पे है. And then there are 20 minutes left, so I will start with new unit. Okay, now before going to the predicate लॉजिक और क्वांटिफायर्स, ये दो मेन है जो आपके लॉजिकल कंपोनेंट में आते हैं. और दूसरा पार्ट जो यूनिट 2 का है वो आपका आई विल ऐड द सेक्शन ओवर हियर. यहाँ पे मैं यूनिट 2 नंबर थ्योरी करूँगा. यूनिट 2 नंबर थ्योरी. So there again 2 parts are there in this unit. First part deals with the quantifiers, predicates and quantifier logic. So ये logic का अगला हिस्सा है
जिसको बोल सकते थे। अभी तक हमने सिंपल लॉजिक देखा, अभी थोड़ा लॉजिक में भी थोड़ा और दिमाग लगाएंगे। देन यूनिट 2 नंबर थ्योरी, देन वी कैन मूव ऑन टू द यूनिट 3 दैट इज मेथड ऑफ प्रूफ्स और समथिंग समथिंग समथिंग। यूनिट 2 में भी बहुत सारे प्रूफ्स हमको देखने हैं, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू द लॉजिक पार्ट ओनली। मैंने जब आपको लॉजिक सिखाया था, ओके, कहाँ गया, दिस लास्ट वन में मैंने बोला था द स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कंसिडर दिस लास्ट स्टेटमेंट, x+4 इज इक्वल टू 9। हमने क्यों बोला था कि ये स्टेटमेंट नहीं है? बिकॉज मुझे x का वैल्यू पता नहीं है। अगर मैं x का वैल्यू 5 रखूंगा तो मुझे ट्रूथ वैल्यू मिलेगा ट्रू। अगर मैं x का वैल्यू -4 रखूंगा तो मुझे ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगा? इसका फॉल्स मिलेगा। तो जब तक मुझे x का पर्टिकुलर वैल्यू पता नहीं है, till I know the particular value of x, I cannot say this is a statement in the logic. What are the statement in the logic? A sentence, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसको आइदर ट्रू होना, वो सही है या गलत है, वो हमको पहचानने आना चाहिए। इसमें हमको अगर जब x की वैल्यू ही नहीं पता तो मेरा सेंटेंस में बोल ही नहीं सकता कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। ओके, तो ऐसे सब स्टेटमेंट को जिसमें हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, x, y, z, कोई भी वेरिएबल जिसमें यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। सो दैट इज योर सेकेंड यूनिट, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर। सो प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल and becomes a statement when specific values are substituted for the variable. The domain of the predicate variable is the set of all values that may be substituted in the place of variable. So इसका हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से इसको देखेंगे कि एक्चुअली में हम क्या बोलना चाहते हैं। आप what we wanted to speak when we say predicate. So let me take the example. Let me take P of x is a sentence that x+4 equal to 9। जो हमने वहां पे लिया था वही एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट मी टेक डोमेन इक्वल टू r। लेट मी टेक डोमेन इक्वल टू set of real numbers. Okay, now I can find different values. If I substitute instead of एक, ये क्या है? सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। जब मैं px की बात करता हूं, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, px स्टेटमेंट नहीं है। बट अगर मैं p of 4 की बात करूं, व्हाट इज p of 4? P of 4 का मतलब क्या है? x is equals to 4. मतलब मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट? 4 + 4 is equal to 9. Can I say this is a statement? No, sir. This is a statement with truth value false. This is a statement with truth. स्टेटमेंट है ये, क्योंकि मैं इसको अभी पता कर सकता हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले वाला स्टेटमेंट में पता नहीं कर सकता था कि ये वो ट्रू है क्या फॉल्स है, करेक्ट? क्योंकि मेरा x मुझे पता नहीं था, अभी मुझे x का वैल्यू पता चल गया, तो मैं बता सकता हूँ कि वो ट्रू है फॉल्स है। कंसीडर p of 5, इज इट अ स्टेटमेंट? Yes, sir. With truth value t. हाँ, so 5 + 4 is equal to 9. Again this is a statement. What is the difference over here? First statement का truth value is false, whereas second statement का truth value is true. दोनों भी क्या है? स्टेटमेंट है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि प्रेडिकेट एक ऐसा वैल्यू है जिसमें हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लेट अस से qxy is a statement
x ग्रेटर देन और इक्वल टू y और उसका डोमेन देता हूं r, डोमेन देता हूं r. Okay, x is greater than or equal to y. Tell me what is the value of q23. What is the statement q23? क्या होगा? qxy का मतलब क्या? x is greater than or equal to y. So x के जगह पे हमको 2 रखना है, y के जगह पे हमको 3 रखना है. तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? to 3. 2 is greater than or equals to 3. What is the statement q3, 2? q3, 2 क्या है? 3 greater than or equal to 2. Both are the statement. This is statement and this is a statement. So मैं जब भी आपका जो वेरिएबल्स यूज होते हैं प्रेडिकेट में, उसमें हम लोग पर्टिकुलर वैल्यूज डालेंगे, मतलब x का कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो स्टेटमेंट बन जाएंगे. द प्रेडिकेट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट, बट व्हेन यू पुट स्पेसिफिक वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड. जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, तब वो क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट बन जाएगा. तो ऐसे होते हैं जिस वेरिएबल यूज होते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉपर्टी बताने के लिए करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेडिकेट. ओके, सो व्हाट इज द प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है? इट इज अ सेंटेंस which contains a property. Sentence which contains a property. जैसे सेट थ्योरी में भी हमने किया था. Consider a set A. Let me define the set. Let's see. X belongs to Z such that X is greater than 0. Set. Can you give me the set? X belongs to set of integers such that X greater than 0. बताओ बताओ बताओ, फास्ट बताओ. 1, 2. 1, 2, 3 एंड सो ऑन के लिए क्या लिखते हैं? लाइक दिस. सो ये जो है x ग्रेटर देन 0, ये क्या है? प्रेडिकेट है. दिस x ग्रेटर देन 0, दिस इज योर प्रेडिकेट. व्हाई इट इज अ प्रेडिकेट? Why it is a predicate? Because it defines some property involving variable. Predicate is a sentence which defines something property. Okay. So what is this predicate? P of x क्या लिख सकता हूं मैं? P of x is equal to sentence x greater than 0. P of x is equal to sentence x greater than 0. So यहाँ पे ये यूज होता है. ये जो प्रेडिकेट है वो यहाँ पे यूज होता है. Okay, let us go further. Let us find the truth value of predicate. Okay, क्या बोला है उन्होंने? Let px be the predicate. क्या predicate है? x square greater than x with the domain of set of real number. Write p of 2, p of 1 by 2 and p of minus 1 by 2. Indicate which of these statements are true, which are the false. First write p of 2. p of 2 क्या होगा इस स्टेटमेंट के लिए? पहले p of x लिखते हैं. What is p of x? X square greater than x. What is p of 2 then? p of 2 का वैल्यू क्या होगा? X is equals to 2. So 2 square greater than 2, that is 4. 2 square is 4 greater than 2. Is it true or false? क्या है इसका? True. What is p of half? p of 1 by 2 क्या होगा?
x के जगह पे मैं 1/2 रखूंगा. 1/2 square is greater than 1/2, that is एक्चुअली आई को हम लोग बहुत सारे मैथमेटिशियन ना दैट इज बोलते हैं, बट एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है इट इज कॉल्ड इन इसेंस. आई के लिए इन इसेंस 1/4 ग्रेटर देन 1/2. क्या होगा इसका ट्रूथ वैल्यू? फॉल्स, क्योंकि 1/4 इज 0.25, 1/2 इज 0.5 एंड वो लेस है. 0.25 इज लेस देन 1.2. व्हाट अबाउट p ऑफ -1/2? क्या होगा स्टेटमेंट? -1/2 the bracket square is greater than -1/2. इन इसेंस क्या होगा सॉल्व करने के बाद? -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस का स्क्वायर इज प्लस होता है, हमेशा याद रखो. इज ग्रेटर देन -1/2. व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? ट्रू और फॉल्स? एनीवन? क्या होगा स्टेटमेंट? ट्रू होगा. सो आई विल जस्ट राइट ट्रू. ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये जो p ऑफ 2 है और ये p ऑफ -1/2 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. वेयर एज p ऑफ 1/2 इज क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. सो पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और जो बीच का स्टेटमेंट है p ऑफ 1/2 वो फॉल्स है. तो इससे आपको एक आइडिया आता है कि कोई भी सेंटेंस का जो प्रेडिकेट लेते हैं और उसका कुछ डोमेन रहता है, तो उसमें से कुछ वैल्यूज के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू रहता है, कुछ वैल्यूज के लिए वो स्टेटमेंट क्या रहता है? फॉल्स रहता है. यस और नो? यस और नो? कुछ वैल्यू के लिए वो ट्रू रहेगा, कुछ वैल्यू के लिए वो फॉल्स रहेगा. तो अभी क्या करना है हमको? एक इसके लिए ट्रूथ सेट बनाते हैं. अभी ट्रूथ सेट क्या होता है कोई भी प्रेडिकेट के लिए? कि हर एक वैल्यू जिस पे वो स्टेटमेंट जो है आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसका ट्रूथ सेट बोलेंगे. तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है. px is a predicate and x has domain D. The truth set of px is a set of all elements of D that make px is true. That make px is true. तो जो भी वैल्यूज ऑफ x है जिसके लिए p ऑफ x ट्रू है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? px. और ये जो फॉर्म है वो सेट थ्योरी में हमने यूज किया था. ये इसको क्या बोलते हैं? कौन सा मेथड बोलते हैं इसको सेट लिखने का? x belongs to D such that p of x. ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर मेथड. सो ये जो ट्रूथ सेट है वो सेट बिल्डर मेथड में यूज होता है. अभी मुझे बताओ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि p ऑफ x is equal to the statement x square greater than x. What is the truth set? Here D is equal to set of real numbers. कौन से वैल्यूज ऑफ r में ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? Which values of r will make this statement is true? Which values of r which make this statement is true? क्या होगा? क्या होगा इसका ट्रूथ सेट? ये बहुत ही कठिन सवाल मैंने पूछ लिया आपको. लेट अस सॉल्व करते हैं. सिंपल सवाल से पूछ लेते हैं. सिंपल पहले कर लेते हैं, बाद में कठिन कर लेंगे. लेट अस सी p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. पहला सवाल है x स्क्वायर प्लस 9. व्हाट इज द ट्रूथ सेट फॉर दिस प्रेडिकेट? 3. इज इट द ओनली वैल्यू? -3. So what he has pointed out, the truth set is here
+3 एंड -3, दोनों वैल्यू के लिए x स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए x स्क्वायर 9 नहीं होगा। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से pxy is a statement that x is equal to 2y and say domain is set of integer. Domain is set of integer. For which value of truth set क्या होगा इसका? What will be the truth set of this particular thing? Can you give me the points for which this statement is true? कौन कौन से point होंगे? Domain is set of integer into set of 2,1. 2,1. 4,2. 4,2 और कोई निगेटिव वैल्यूज में दे दो। 6,3 नेगेटिव। -6, -3, ओके एंड सो ऑन। तो ये जो ट्रूथ सेट है वो थोड़ा ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ मैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट मी गो बैक टू से यहाँ पे कुछ जगह है क्या? ठीक है, जगह तो है, तो कर लेंगे। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। Let me draw a line like this. अभी हम लोग पॉइंट्स लेते हैं। x is equal to 2, y is equal to 1. This is our point 2,1. x is equal to 3, y is equal to 0.5. So x is equal to 4, y is equal to 2. So it is of the point 4,2. So every point, this is the line y is equal to x. This is the line y is equal to x. ये ऐसे नहीं समझिएगा सर, मैं थोड़ा इसको और मॉडिफाई। अभी ठीक रहेगा ये। एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं वो रूल लाइन से मैच करने के लिए, सो दैट अभी ये अच्छे से ड्रॉ होगा। ये 4 है, x पे 4 है, y पे 2 है, तो ये 4,2 पॉइंट हुआ। एवरी पॉइंट विच इंटरसेक्ट दिस ग्रिड, ये जो ग्रिड है ना वो सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ z क्रॉस z है। 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 ये सब इसमें होंगे। और अगर मिडल में जो पॉइंट है ना, अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर लेता तो हर एक पॉइंट ये जो लाइन पे बन रहा है ना, हर एक पॉइंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता x is equal to 2y. Okay, so graphically the truth set of this is represented by this line. वो लाइन पे जो भी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये लाइन पे जो जो भी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है वो सब क्या होंगे, किस में आएंगे, ट्रूथ सेट में आएंगे। ओके, इज दिस क्लियर फ्रॉम द ग्राफ? यस और नो? तो ये थोड़ा हम लोग को इमेजिनेशन पे बहुत करना पड़ता है इसमें। ओके, ऐसे ही नहीं समझता, थोड़ा बहुत आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा मैथ्स में, और जितना ज़्यादा आप इमेजिन करना सीखोगे मैथ्स, उतना ज़्यादा इजीली आपको मैथ्स आएगा। सो लेट्स स्टॉप हियर, लेट मी जस्ट डाउनलोड द अटेंडेंस। सकलीन,
please unmute yourself.